Good morning, students. Welcome back. Today's class. Our today's class is for answers. You know very well, before last class, in our last class, we already seen about the topic on subject, phrase and class, subject and predicate, sentence. We have already see this. Now today we are going to see the answers of those exercise. I have gave you some questions to practice at home. I think you are practiced well. Now I will tell you the answers. The first one is sentence. Identify the type of sentence. What you have to do here? You have to identify the which type of sentence is this. First one, do you believe in God? This is a question asking you asking someone. Do you believe in God? क्या आप विश्वास करते हैं गॉड पर विश्वास करते हैं? सो इट इज़ अ क्वेश्चन. यहाँ पे हमने पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड किया है. सो दिस इज अ क्वेश्चन. सो इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is interrogative sentence. Interrogative. This is a question you are asking someone, do you believe in God? So it is an interrogative sentence. Next, second one, oh, I am so sorry. What is this? This is you used your exclamatory mark and ho. Ho is a ho is your expression. Ho is your expression. So you used your exclamatory mark. So it is an exclamatory sentence. Next, do as you are told. What is this? Do as you are told. ये हो गया आपका कमेंट. आपको कमेंट किया गया है कि जैसे आपको बताया है आप वैसे करो. सो डू एज यू आर टोल्ड. इट इज़ अ कमेंट. सो इट इज़ एन imperative sentence. Next, please do not leave me alone. ये क्या हो गया? यहाँ पे आपको आपने रिक्वेस्ट किया, प्लीज डू नॉट लीव मी अलोन. सो इट इज अ रिक्वेस्ट. इट इज ऑल्सो एन imperative sentence. Ram has two pen. It is a Ram has two pen. It is declarative sentence. Next, exercise 2. Rewrite the following group of words to form a meaningful sentence. First one, I knew jeans, a pair of brought. ये क्या है? आपके जंबल वर्ड्स हैं. जंबल वर्ड्स हैं, आपको जो उसे सही करने हैं. यू हैव टू मेक इट इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस. आई bought a new pair of jeans. You have to form a I bought a pair of new jeans. Next, second one, train getting the closer is. The train is
गेटिंग क्लोजर। सेंटेंस को रीऑर्डर करने के बाद हमें करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है या नहीं है, ये आपको देखना है। पहले था ट्रेन गेटिंग द क्लोजर इज, और अभी हमने लिखा है ट्रेन इज गेटिंग क्लोजर। सो हमें जिससे सही मीनिंग मिलता है वो करेक्ट परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है। यू क्लीन शुड वियर क्लॉथ्स एवरी डे। इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? यू शुड वियर clean clothes every day. Next, now fourth one, making you why and noise or. So why are you making a noise? Question mark. Rashmi first stand always. यहाँ पर आर स्मॉल लेटर दिया हुआ है. We are using the capital letter here because the sentence first letter must be in capital. Rashmi always stands first. Full stop. First letter must be in capital and the end of the sentence you have to add full stop. Does her work she properly? She does her work properly. Full stop. So this is your sentence answers which I have gave you yesterday. You can check it. If you did anything mistake, you can correct that. Next, second topic is phrase and class. This is your phrase and class exercise. Pick out the phrase in the following. They can run across the bridge. यहाँ पे हमें क्या करना है? phrase pick out करके लिखना है. phrase कौन सा है? run across the bridge. This अगर हम सिर्फ दे कैन रन अक्रॉस द ब्रिज लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ अक्रॉस द ब्रिज लिखेंगे तो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता. सो दिस वन इज़ फ्रेज. सेकेंड सेंटेंस, अ पेज एट द एंड इज़ मिसिंग. पूरा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग है और इसमें जो कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता है, हमारा एक पार्ट है जो फ्रेज का पार्ट कौन सा है? एट द एंड इज़ द फ्रेज, द पार्ट ऑफ अ फ्रेज. कटिंग ग्रीन ट्रीज, ये क्या हमारा फ्रेज है यहाँ पर. और माई सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज. सो अगर हम लोग माई सिस्टर इज़ अ स्टूडेंट लिखेंगे तो कंप्लीट मीनिंग मिलता है. अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज लिखेंगे तो भी कंप्लीट मीनिंग मिलता है. अ स्टूडेंट इज़ अ स्टूडेंट, इट्स अ फ्रेज. नेक्स्ट, मेक सेंटेंस. फ्रेज है, आपको जो फ्रेज वर्ड दिए हुए हैं उससे आपको सेंटेंस बनाने हैं. ये रहे सेंटेंस. फर्स्ट वन, दे आर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. यहाँ पर ऑन द प्लेटफॉर्म क्या हो गया? फ्रेज हो गया. सो हमने सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिया. दे आर वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. वी कैन सी सेवरल बुक्स इन द लाइब्रेरी. यहाँ पर इन द लाइब्रेरी फ्रेज हो गया, और इस आगे हमने ये वर्ड्स कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड करके इस फ्रेज को पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना दिया है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. यहाँ पर इन द ईस्ट फ्रेज हो गया, और हमने द सन राइजेस ऐड करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है. आई वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. एट द कॉर्नर इज़ अ फ्रेज, और यहाँ पे हमने आई वॉज स्टैंडिंग ऐड करके ये सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है. नाउ थर्ड वन इज़ आइडेंटिफाई द क्लास एंड फ्रेज. इसमें हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि क्लास कौन सा और फ्रेज कौन सा है. ही वॉज डूइंग द होमवर्क स्लोली एंड केयरफुली. यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज डूइंग वर्ब हो गया. सो ये क्लास हो गया और ये द वर्क स्लोली एंड केयरफुली. इसे में कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता, सो इट इज़ अ फ्रेज. आई विल वेट हियर until he comes his work, complete his work. I will wait here. यहाँ पे I is a subject, wait is a verb. So ये क्या हो गया? क्लास हो गया.
नेक्स्ट यहाँ पे वापस ही आ गया, ही, सो ही क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे कंप्लीट्स वर्ब आ गया, सो इट इज़ ऑल्सो अ क्लास, हिज वर्क, ही कंप्लीट हिज वर्क। अगर हम लोग ये लिखेंगे आई विल वेट हियर, ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लास हो गया, बिकॉज हमें पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रहा है। अनटिल ही वेट, यहाँ पे अनटिल हमने कंजक्शन यूज़ किया है, ही वेट्स हियर, ही वेट्स अनटिल ही कंप्लीट हिज वर्क। मैं यहाँ रुकूंगी जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे ही कंप्लीट हिज वर्क, तो क्या ये तो सेंटेंस कंप्लीट है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, और इस इंडिपेंडेंट क्लास के बिना ये डिपेंडेंट क्लास अधूरा है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 क्लास लिखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन में फ्रेज और क्लास दोनों दिए हुए हैं, और सेकेंड वन में डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लासेस हमने फाइंड आउट किया है। ये इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखेंगे कंप्लीट हिज वर्क, तो ये कंप्लीट हिज वर्क फ्रेज हो गया, कंप्लीट हिज वर्क क्या हो गया, फ्रेज हो गया। चलो नेक्स्ट आवर थर्ड टॉपिक, subject and predicate. Pick out the subject and predicate. First one, Ramu and Ravi may came tomorrow. So रामू एंड रवि ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, रामू और रवि, सो दे आर सब्जेक्ट, मे केम टुमारो और प्रेडिकेट। ऑल द स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स आ गया सब्जेक्ट, शुड रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स प्रेडिकेट। लूजी इज़ प्लेइंग पियानो, सो लूजी इज़ अ सब्जेक्ट, इस वर्ब हो गया, प्लेइंग पियानो प्रेडिकेट। द फिशरमैन्स आर कैचिंग फिश, फिशरमैन सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब आ गया, कैचिंग फिश वर्ब के बाद जो भी आता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। नेक्स्ट, ऐड एज सब्जेक्ट टू द सेंटेंस। मैंने कुछ सेंटेंस आपको दिए थे पहले, आपको बताया गया कि आपको सब्जेक्ट ऐड करना है उसमें। सो दिस इज़ योर आंसर्स। चिल्ड्रन, अगर हम चिल्ड्रन ऐड करेंगे तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग दी क्रिकेट नाउ, ज़रूरी नहीं कि भी चिल्ड्रन लिखना, हम और भी लिख सकते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, कुछ भी लिख सकते हैं। यू हैव टू राइट एनी सब्जेक्ट हियर, यू कैन राइट एनी सब्जेक्ट हियर, हम कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर चिल्ड्रंस का ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आर दिया हुआ है तो इस आर के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट लिखना है। आर मतलब यह क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ जाता है, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। अगर इस आए तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है। नेक्स्ट सेकेंड वन, पीपल शुड डोनेट दी ब्लड टू द पुअर, क्या करना चाहिए, पीपल शुड डोनेट द ब्लड टू द पुअर। नेक्स्ट नंबर थर्ड वन, दे लाइक माई English teaching the most. Fourth one, students should not make a noise in the class. हो गया। Next exercise 3, add predicate in the following. अब इसमें मैंने आपको सब्जेक्ट दे दिया था और आपको प्रेडिकेट लिखने के लिए बताया गया है, तो ये उसके आंसर्स हैं। द डॉक्टर इज़ एग्जामिनिंग द पेशेंट, इंडियन फार्मर्स आर, यहाँ पे फार्मर्स प्लूरल फॉर्म हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिखा है, डॉक्टर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है इसलिए मैंने यहाँ पर इस लिखा है। द इंडियन फार्मर्स आर प्लगिंग द फील्ड, अ जेंटल पर्सन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, द टीचर taught English. That's it students, your exercise work is done. आई थिंक आपके बहुत सारे आंसर सही होंगे। ओके, नेक्स्ट वी विल मीट इन योर नेक्स्ट क्लासेस, बाय।